آپ کو قبر کی تلاش تھی، آج سے آپ کی تلاش ختم ہوئی۔ مجھے بھی اسی قبر کی ضرورت تھی۔ معاف کرنا دوستو، میں نے ہی تمہارے دوستوں کی جان لی ہے۔ یہ قبر میرا گھر ہے اور روزانہ مجھے بلاتی ہے، کیونکہ میں 100 سال پہلے مر چکا ہوں، لیکن میں 100 سال سے اس جنگل میں بھٹک رہا تھا۔ جب تک میں 4 آدمیوں کو مار نہ لیتا تب تک میں جنگل میں بھٹکتا رہتا۔ میں نے آپ کے 4 دوستوں کو مار کر اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے، مجھے معاف کرنا۔ میں نے اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے تمہارے دوستوں کو مار دیا۔ بوڑھے نے انہیں بتایا۔ اچانک ہی قبر پھٹی اور بوڑھے نے قبر میں چھلانگ لگا دی اور قبر دوبارہ سے بند ہو گئی۔ وہ سکتے کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے تھے، کسی میں بھی ہمت نہ تھی کہ وہ کچھ بول سکیں۔ ان کے چہروں پر خوف چھایا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں ہیں۔ ان کو حقیقت کا معلوم ہو گیا تھا کہ ایک مرا ہوا انسان ان کے ساتھ رہ رہا تھا اور وہ مرا ہوا انسان ہی ان کی موت بنا ہوا تھا۔ آج ان کی تلاش ختم ہو گئی تھی۔ وہ جس قبر کو تلاش کرنے آئے تھے اس تک پہنچ گئے تھے، لیکن اپنے پیاروں کو کھو کر۔ ایک سنسنی خیز اور خوفناک کہانی۔ السلام علیکم، اردو کہانی ورلڈ چینل میں خوش آمدید۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل اردو کہانی ورلڈ کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں۔ اس کہانی کو اینڈ تک سنتے رہیے۔ قبر کی تلاش۔ چلو بھائی، سب تیار ہو نا؟ عمران نے آتے ہی پوچھا۔ ہم سب تو تیار ہیں، بس آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا، ماریا نے غصے سے کہا۔ تو چلو کھڑے کیوں ہو دوستو، عمران نے آگے چلتے ہوئے کہا۔ پھر باقی دوست بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے گئے ہوں گے کہ ایک بس اس کے پاس آ کر رک گئی۔ وہ سب بس میں سوار ہو گئے۔ بس 1 گھنٹے کے بعد ایک جنگل قریب جا کر رک گئی۔ سب دوست بس سے اترنے لگے۔ ارے کرایہ کون ادا کرے گا؟ شاہ زیب نے بس سے اترتے ہوئے کہا۔ تم اور کون؟ عمران نے پیچھے مڑ کر کہا۔ تو سب دوستوں نے پیچھے مڑ کر کہا۔ سب دوست ہی اب اتر چکے تھے۔ شاہ زیب نے کرایہ ادا کیا اور بس سے باہر آ گیا اور بس آگے چل پڑی۔ لگتا ہے یہ جنگل بہت خوبصورت ہوگا، شاہ زیب نے جنگل میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ پھر سب دوست جنگل میں داخل ہو گئے۔ وہ جنگل میں ہی آگے چلے جا رہے تھے۔ وہ 8 دوست تھے، 4 لڑکے اور 4 لڑکیاں۔ لڑکوں کے نام شاہ زیب، واصف، عارف اور عمران، جبکہ لڑکیوں کے نام ماریا، ہما، سیرش اور کمل تھے۔ وہ جنگل میں چلتے جا رہے تھے۔ کتنا خوبصورت جنگل ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی وادی ہو، واصف نے کمل سے کہا۔ اس جنگل کے جانور بھی بہت خوبصورت ہوں گے، ہما نے کمل اور واصف کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی واصف کو جنگلی بلی دیکھنے کا بہت شوق ہے، جنگلی بلی کا دیدار کرے گا، شاہ زیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے شاہ زیب؟ سیرش نے شاہ زیب سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ شاہ زیب نے سیرش کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ ایسی قبر ہے اس علاقے میں جس سے آواز آتی ہوگی؟ سیرش نے کہا۔ ہو سکتا ہے، شاہ زیب نے مختصراً کہا۔ وہ سب باتیں کرتے جا رہے تھے۔ عارف سب سے آگے چل رہا تھا۔ عارف سب سے زیادہ ڈرپوک تھا۔ آج تو ڈرپوک صاحب آگے چل رہے ہیں، حیرت ہے، کمل نے کہا۔ عارف ایک بہت بڑے درخت کے نیچے جا کر رک گیا۔ واہ، یہ درخت تو بہت بڑا ہے، عارف نے درخت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب ایسے بڑے بڑے درختوں کے اوپر کالی کالی چڑیلیں بھی ہوتی ہیں، واصف نے عارف کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ویسے اتنا بڑا درخت میں نے آج تک نہیں دیکھا، ہما نے درخت کے پاس آ کر کہا۔ ابے چلو، واصف نے آگے چلتے ہوئے کہا۔ ہما بھی آگے چل پڑی۔ عارف درخت کو ہاتھ لگا کر دیکھ رہا تھا کہ اس کے اوپر کندھے پر ایک کالا سانپ آ گرا۔ عارف نے ایک چیخ ماری اور سانپ کو دور پھینک دیا۔ باقی سب دوست ہنسنے لگے اور شاہ زیب نے عارف کے اوپر پھینکا تھا اٹھا کر جیب میں ڈال لیا۔ وہ نقلی سانپ تھا جو شاہ زیب نے عارف کے اوپر پھینکا تھا۔ عارف بہت زیادہ ڈر گیا تھا، اس لیے سب کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ سب باتیں کرتے ہوئے جنگل میں آگے چلے جا رہے تھے کہ کسی کے رونے کی آواز ہر طرف گونجنے لگی۔ یہ آواز کیسی ہے؟ ماریا نے بےتاب ہو کر کہا۔ لگتا ہے کوئی مصیبت میں ہے، عارف نے رک کر کہا۔ کون ہو سکتا ہے اس جنگل میں؟ عمران نے ادھر دیکھتے ہوئے کہا اور سب سے آگے چلنے لگا۔ رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ سب آگے چلنے لگے اور رونے کی آواز اور زیادہ تیز ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد انہیں دور سے ایک شخص درخت کے نیچے بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔
जब वो उसके करीब पहुंचे तो वो एक बूढ़ा आदमी था। उसके मट्टी से भरे हुए लंबे लंबे बाल और जिस्म पर मैला सा सूट था। एक पल के लिए तो सब उसे देखकर डर गए। वो बूढ़ा एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ सर झुकाए रो रहा था। वो शक्ल से 80-90 साल का लग रहा था। उसके रोने की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि लगता था कोई 15-20 साल लड़का रो रहा हो। कौन कौन है आप? शाहजेब ने बेमुश्किल पूछा। बूढ़े ने रोना बंद कर दिया और ऊपर सर उठाकर देखा। उसकी मोटी और सुर्ख आंखें देखकर सब ही डर गए। वो बूढ़ा गौर से उन्हें देख रहा था। कौन है आप बाबा जी? शाहजेब ने दोबारा पूछा। बैठो बेटा, उस बूढ़े ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। सब दोस्त जहाँ खड़े थे वहीं बैठ गए। बेटा, मेरा नाम नवाज है और मैं काफ़ी अरसे से इस जंगल में भटक रहा हूँ। कहाँ जाना है बाबा जी आपने? इमरान ने पूछा। बेटा, इस जंगल के आखिर में एक सहरा है और सहरा पार करने के बाद एक कब्रिस्तान आता है, मुझे वहीं जाना है, बूढ़े ने बताया। लेकिन बाबा जी, आपका कब्रिस्तान में क्या काम है? वासिफ ने बूढ़े से पूछा। बेटा, वहाँ मेरा घर है, मैंने वहीं जाना है, बूढ़े ने कहा। बेटा, कब्रिस्तान में घर होते हैं, मेरा घर वहीं है। कब्रिस्तान में घर नहीं होते हैं? सैरिश ने हैरान होकर पूछा। बेटा, कब्रिस्तान में घर होते हैं, इसमें हैरानगी वाली कोई बात नहीं। क्या आपको घर वालों ने तलाश नहीं किया? बाबा जी, शाहजेब ने पूछा। बेटा, मैं इस दुनिया में अकेला ही रहता हूँ। एक बीवी थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही और मेरी कोई औलाद भी नहीं है, बूढ़े ने मायूसी से कहा। बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर, हुमा ने अफसोस करते हुए कहा। बेटा, तुम सब इस जंगल में क्या कर रहे हो और तुम सब कहाँ जा रहे हो? बूढ़े ने सब की तरफ देखते हुए पूछा। बाबा जी, हमें एक कब्रिस्तान की तलाश है जो इसी इलाके में वाक़ है। उस कब्रिस्तान में एक ऐसी कब्र है जिससे आवाज़ आती है। कब्र से आवाज़ आती है कि ए बंदे, अपने घर में आ जा, मुझे तेरा इंतज़ार है। आरफ ने बूढ़े को तफसील बताई। अरे बेटा, वो कब्र तो उसी कब्रिस्तान में है जिसमें मैं जाना चाहता हूँ, बूढ़े ने कहा। फिर तो हमारी मंजिल करीब है, मारिया ने खुश होकर कहा। अब हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे, वासिफ ने भी खुश होकर कहा। इंशाल्लाह हम आज ही इस जंगल से निकल जाएंगे, सैरिश ने कहा। लेकिन बेटा, मैं तो काफ़ी अरसे से इस जंगल में भटक रहा हूँ, लेकिन ये जंगल तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, बूढ़े ने मायूस होकर कहा। आप फिक्र ना करें बाबा जी, हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह जल्दी हम इस जंगल से बाहर होंगे, इमरान ने बूढ़े को तसल्ली देते हुए कहा। हाँ, अगर तुम मेरे साथ हुए तो मैं अपने घर तक पहुंच जाऊंगा, बूढ़े ने इमरान की तरफ गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। हम आपके साथ हैं बाबा जी, हुमा ने कहा। तो बूढ़े के चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई। फिर सब दोस्तों ने अपने अपने बैगों से खाना निकाला और खाने लगे। उन्होंने बूढ़े को भी खाना खाने को कहा, लेकिन बूढ़े ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो बूढ़ा है और शहरी खाने नहीं खाता, बल्कि जंगल के फल खाता है। ये कहकर वो बूढ़ा उठा और जंगल में एक तरफ को चला गया और वो सब दोस्त खाना खाने लगे। उन्होंने बूढ़े को भी खाना खाने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा वापस आया तो उसके हाथ में कुछ फल थे। उसने वो सब फल सब दोस्तों को दे दिए और खुद एक तरफ बैठ गया। वो बूढ़ा गहरी नज़रों से सब दोस्तों को देख रहा था। जब सब ने फल खाए तो उन्हें बहुत मज़ा आया, क्योंकि फल बहुत मज़ेदार थे। उन्होंने इतने मज़ेदार फल आज तक नहीं खाए थे। फिर उन्होंने अपना सामान बैगों में रखा और आगे चल पड़े। वो बूढ़ा भी उनके साथ। चलते चलते रात हो गई और जंगल से जानवरों की खौफनाक आवाज़ें आने लगीं और परिंदे दरख्तों के इर्द गिर्द घूमने लगे। अब हमें रात यहाँ ही गुजारनी पड़ेगी, शाहजेब ने अपना बैग एक जगह रखते हुए कहा। नहीं बेटा, यहाँ जंगली जानवरों के आने का खतरा है। यहाँ से थोड़ी दूर एक गार है, हमें वहाँ जाना चाहिए, बूढ़े आदमी ने शाहजेब की तरफ देखते हुए कहा। सब दोस्तों ने बूढ़े की बात से इत्तेफाक किया और आगे चल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद वो गार में पहुंचे। सब ने अपने बैग एक तरफ रखे और बैठकर बातें करने लगे और बूढ़ा गार से बाहर खड़ा एक तरफ देख रहा था। वो सब गार में बैठकर बातें कर रहे थे कि वो बूढ़ा गार में दाखिल हुआ। बेटा, वो सामने तालाब है, वहाँ रात को भूल कर भी मत जाना, बूढ़े ने आते ही कहा। क्यों बाबा जी? वासिफ ने पूछा। वो इसलिए कि वो खून का तालाब है। ज़ाहिर तो वहाँ पानी नज़र आता है, लेकिन वहाँ खून ही खून है, और अगर कोई रात को वहाँ जाए तो वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है, बूढ़े ने कहा और गार से बाहर निकल गया।
ये बूढ़ा मुझे कोई भूत लगता है, मारिया ने कहा। मुझे भी, इमरान ने मारिया की तरफ देखते हुए कहा, और फिर सब ही सो गए। रात के किसी पहर हुमा की प्यास की वजह से आंख खुल गई। हुमा ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली तो उसमें पानी नहीं था। हुमा ने आरफ को जगाया और पानी मांगा। आरफ की बोतल भी खाली थी। फिर उन्होंने सब दोस्तों की बोतलें देखीं तो सब की सब बोतलें खाली थीं। अब क्या करें, आरफ ने परेशान होते हुए कहा। ऐसा करते हैं कि वो जो सामने तालाब है वहाँ से पानी ले आते हैं। क्या वहाँ तो खून है, आरफ ने पीछे हटते हुए कहा। अरे तुम भी उस बूढ़े की बातों में आ गए, हुमा ने कहा और आरफ का बाजू पकड़कर उसे गार से बाहर ले आई। गार से बाहर चांद की रोशनी फैली हुई थी। गार से थोड़े फासले पर वो बूढ़ा एक बड़े से पत्थर पर सो रहा था। दोनों ने एक नज़र उस बूढ़े की तरफ देखा और फिर तालाब की तरफ चल पड़े और बूढ़े ने अपनी आंखें खोलीं। हुमा और आरफ तालाब के पास गए। हुमा अपनी बोतल में पानी डालने लगी। देखा ये पानी है, खून नहीं। वो बूढ़ा झूठ बोल रहा था। हुमा ने पानी बोतल में डालते हुए कहा, चलो भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आरफ ने डरते हुए इधर उधर देखते हुए कहा। हुमा ने पानी बोतल में डाल लिया था। जब वो दोनों पीछे मुड़े तो आगे बूढ़ा खड़ा था। आप, आरफ ने चौंक कर कहा और बूढ़े के मुंह से कह का निकला, हा हा हा। हुमा के हाथ से बोतल नीचे गिर गई। भागो आरिफ, हुमा ने चीख कर कहा। आरफ और हुमा भागने लगे। आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे, बूढ़े ने कहा और साथ ही बूढ़े के हाथ लंबे होने लगे। अब बूढ़े के हाथ हुमा और आरफ के करीब पहुँच चुके थे। फिर बूढ़े के हाथों ने आरफ और हुमा के पांव पकड़ लिए और दोनों को घसीटते हुए तालाब के पास ले गया। हुमा के गले से लाकट नीचे गिर गया था। फिर बूढ़े ने आरफ और हुमा को तालाब में गिरा दिया। माफ़ करना दोस्तों, बूढ़े ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। वो दोनों तालाब में डूब चुके थे। फिर थोड़ी देर बाद उन दोनों के ढांचे तालाब के पानी में तैरते हुए दिखाई देने लगे और बूढ़ा जोर जोर से कहके लगाने लगा। सुबह जब मारिया की आंख खुली तो उसने देखा कि हुमा अपनी जगह पर नहीं है। उसने सैरिश और कमल को भी जगा दिया। जब वो तीनों लड़कों के पास आईं तो आरफ भी अपनी जगह से गायब था। फिर उन्होंने शाहजेब, इमरान और वासिफ को भी जगा दिया। वो तीनों भी उठकर बैठ गए। अरे क्या हुआ है, इतनी सुबह सुबह क्यों जगा दिया, शाहजेब ने आंखें मलते हुए कहा। वो हुमा और आरफ यहाँ नहीं हैं, सैरिश ने परेशान होकर कहा। अरे हो सकता है कि वो बाहर घूमने गए हों, इमरान ने कहा। और फिर वो सब उन दोनों का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा गार में दाखिल हुआ और एक तरफ बैठ गया। अरे दोस्तों, आपके बाकी दोस्त कहाँ हैं, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो बाहर गए हुए हैं, अभी आ जाएंगे, वासिफ ने बूढ़े की तरफ देखते हुए कहा और बूढ़े के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। काफ़ी देर तक वो आरफ और हुमा का इंतज़ार करते रहे लेकिन वो ना आए। वो इस दुनिया में होते तो आते। मेरे ख्याल में हमें बाहर जाकर देखना चाहिए, उन दोनों को तलाश करना चाहिए, शाहजेब ने उठते हुए कहा और सब दोस्त और बूढ़ा बाहर निकल आए। बाहर सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। काफ़ी देर तक वो सब हुमा और आरफ को इधर उधर ढूंढते रहे लेकिन वो ना मिले। हमें उस तालाब की तरफ जाकर उन्हें देखना चाहिए, हो सकता है वो वहाँ हों, कमल ने तालाब की तरफ इशारा करते हुए कहा। जब वो तालाब के पास पहुंचे तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो सब होनकों की तरह तालाब में देखने लगे। मैंने मना भी किया था कि उस तालाब की तरफ कोई भी ना जाए, ये तालाब खूनी है, लेकिन मेरी किसी ने ना मानी, बूढ़े ने उन दोनों के ढांचों को देखते हुए कहा। हुमा और आरफ के ढांचे तालाब के ऊपर ही तैर रहे थे। ये लाकड़ तो हुमा का है, कमल ने लाकड़ उठाकर कहा, और ये बोतल भी हुमा की है, सैरिश ने तालाब के पास गिरी हुई बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुमने उन दोनों को मारा है ना, इमरान ने बूढ़े के गरेबान से पकड़कर कहा। नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा, मैं तो रात को सो रहा था, मुझे क्या पता था ये कब यहाँ आए, बूढ़े ने परेशान होकर कहा। छोड़ दे इसे शाहजेब, बूढ़े का गरेबान इमरान के हाथ से छुड़ाते हुए दूसरे लड़के ने कहा। अब उन ढांचों को तो तालाब से बाहर निकालो, सैरिश ने रो रो कर कहा। नहीं, अगर कोई इनके ढांचों को तालाब से बाहर निकालने गया तो वो खुद भी तालाब की नज़र हो जाएगा, बूढ़े ने सैरिश की तरफ देखकर कहा। उन लोगों ने बूढ़े की बात मान ली और उन ढांचों को वहीं छोड़कर वापस चल दिए। वो बूढ़ा भी उनके साथ साथ चलते चलते वापस आ गया। वो जंगल खत्म हुआ और सहरा आ गया। शाम का वक्त था, सबने खाना खाया और बूढ़े को भी दिया। फिर वो सब बातें करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता रात हो गई। उन्होंने अपना सामान एक जगह रखा और सो गए।
चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था और वो बूढ़ा उनसे थोड़े फासले पर बैठा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो कुछ देर तक उनको गौर से देखता रहा और फिर सो गया। रात के किसी पहर इमरान की आंख खुल गई और वो उठकर बैठ गया। उसकी नज़र थोड़े फासले पर सोए हुए बूढ़े पर पड़ी तो इमरान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। इमरान ने अपने दोस्तों को देखा जो गहरी नींद सो रहे थे। इमरान खामोशी से उठा और बूढ़े के पास जा पहुंचा। इमरान ने अपने दोनों हाथ बूढ़े की गर्दन की तरफ बढ़ा दिए। अभी उसके हाथ बूढ़े की गर्दन से दूर ही थे कि बूढ़े ने अपनी बंद आंखें खोल दी। इमरान ने डर कर हाथ पीछे कर लिए। मारना चाहता है मुझे? बूढ़े ने गजबनाक लहजे में कहा। क्यों मारना चाहता है? हाँ, मैं मारना चाहता हूँ तुम्हें, इमरान ने बूढ़े की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा। क्यों मारना चाहता है मुझे? बूढ़े ने एक बार फिर अपना फिक्रा दोहराया। मैं तुमसे अपने दोस्तों की मौत का बदला लेना चाहता हूँ, क्योंकि उनको किसी और ने नहीं, तूने ही मारा है। मैं तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ देख चुका हूँ। हा, बूढ़े ने एक फलक शगाफ कहका लगाया। हुमा और आरफ को तुम ही ने मारा है ना? इमरान ने गुस्से से पूछा। हाँ, मैंने ही तुम्हारे दोस्तों को मारा है, बूढ़े ने गुस्से से कहा। मगर क्यों? इमरान ने चीख कर पूछा। अपना मकसद पूरा करने के लिए, बूढ़े ने भी चीख कर कहा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर इमरान ने गुस्से से बूढ़े के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। बूढ़े ने गुस्से से इमरान की तरफ देखा। इमरान ने दूसरा थप्पड़ बूढ़े को मारना चाहा तो बूढ़े ने इमरान का हाथ पकड़ लिया। इमरान ने उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उस बूढ़े के हाथों में इतनी ताकत आ गई थी कि इमरान अपना हाथ हिला भी ना सका। बूढ़े की आंखें सुर्ख अंगारों की तरह हो चुकी थीं। वो अपनी सुर्ख आंखों से इमरान को घूर रहा था। उसकी आंखों में एक वहशत थी। कोई भी उसकी आंखों को देख लेता तो अपनी आंखें झुका लेता, लेकिन इमरान उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता जा रहा था। इमरान को गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था और वो चाहता था कि बूढ़ा किसी तरह उसका हाथ छोड़ दे, क्योंकि वो जितना जोर लगा रहा था बूढ़े की गिरफ्त उतनी ही मजबूत होती जा रही थी। जब उसकी कोई पेशरफ्त काम ना आई तो उसने दूसरे हाथ से बाबा को थप्पड़ मारना चाहा तो बूढ़े ने इमरान का दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। बूढ़े ने मुंह खोला तो उसकी जुबान बाहर आई और इमरान की गर्दन के गिर्द लिपट गई। इमरान की आंखें बाहर आने लगीं। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ हलक में अटक कर रह गई और फिर धीरे धीरे इमरान की आंखें बंद होने लगीं। वो बिल्कुल बेसुध हो गया था। उसके हाथ पांव हिलना बंद हो गए। वो मर चुका था। उसके जिस्म से जान निकाल ली गई थी। बूढ़े की लंबी जुबान उसकी मौत का फंदा बन गई थी। जब वो मर गया तो बूढ़े की जुबान उसकी गर्दन से उतरने लगी और अपने मुंह में वापस आ गई। फिर बूढ़े ने कुछ पढ़कर इमरान पर फूंका तो वो दूर जा गिरा और उसका जिस्म सहरा में धंसता चला गया। उसका सारा जिस्म सहरा में धंस चुका था, सिर्फ उसका सर बाकी रह गया था। सुबह शाहजेब की आंख खुली तो उसने इमरान को अपनी जगह ना पाया तो इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे दूर सहरा में भी वो नजर ना आया। सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। शाहजेब अपनी जगह से उठा और एक तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसका पांव किसी चीज से टकराया और वो मुंह के बल गिर पड़ा। जिस चीज से उसका पांव टकराया था उसने उस तरफ देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर वासफ, कंवल, मारिया और सैरस जागी और वो बूढ़ा भी उठ गया। वो सब भागकर शाहजेब के पास आए। जिस चीज से शाहजेब का पांव टकराया था वो इमरान का सर था। सब इमरान को इस हाल में देखकर रोने लगे। काफ़ी देर तक रोने के बाद शाहजेब और वासफ ने वहाँ से रेत हटानी चाहिए तो इमरान का सर भी रेत में धंसता चला गया। शाहजेब और वासफ ने वहाँ से बहुत ज़्यादा रेत हटाई, लेकिन इमरान का नामो निशान तक ना मिला। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, बूढ़े ने कहा। नहीं, हम नहीं जाएंगे। जब तक हम अपने दोस्तों की मौत का बदला नहीं ले लेते हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे, मारिया ने रोते हुए कहा। अचानक ही मारिया को लगा कि वो भी सहरा में धंसती जा रही हो। मुझे यहाँ से निकालो, मारिया ने चीख कर कहा। उन सब ने मारिया की तरफ देखा तो खौफ से कांप कर रह गए, क्योंकि वो रेत के अंदर धंसती चली जा रही थी। वो तेजी से उसके इर्द गिर्द से रेत हटाने लगे, लेकिन मारिया मुसलसल रेत के अंदर धंसती चली जा रही थी और पीछे खड़ा बूढ़ा मुस्कुरा रहा था। अब मारिया का सिर्फ सर ही रेत से बाहर रह गया था और बाकी सारा जिस्म रेत में धंस चुका था। तुम सब यहाँ से चले जाओ, ये मौत का सहरा है, मारिया ने इतना कहा
اور ساتھ ہی اس کی روح جسم سے غائب ہو گئی۔ شاہ زیب نے ماریہ کو وہاں سے نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا سر بھی صحرا میں دھنس گیا۔ وہ پوری کی پوری صحرا میں دھنس چکی تھی۔ ان سب کے چہروں پر خوف کی پرچھائیاں نمودار ہونے لگیں، زبانوں نے بولنا بند کر دیا تھا۔ کافی دیر تک وہاں گہرا سکوت چھایا رہا۔ پھر شاہ زیب نے کہا، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، کیونکہ یہ موت کا صحرا ہے، کسی کی بھی جان لے سکتا ہے۔ واصف نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شاہ زیب، سہرش، کمل بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بوڑھا بھی ان کے آگے آگے چلنے لگا اور وہ سب بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد چلنے کے بعد جب وہ صحرا سے باہر آ گئے تو قبرستان شروع ہو گیا۔ آپ سب اور میں اپنی منزل تک پہنچ گئے ہیں۔ آپ کو قبر کی تلاش تھی اور مجھے ضرورت، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ قبر کہاں ہے؟ سہرش نے پوچھا تو بوڑھے نے کہا، آؤ میرے ساتھ، اور قبرستان میں داخل ہو گیا۔ وہ چاروں بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ بوڑھا ایک قبر کے پاس جا کر رک گیا۔ یہی وہ قبر ہے جس سے آواز آتی ہے، بوڑھے نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچانک ہی قبر سے آواز ابھری، اے بندے اپنے گھر میں آ جا، مجھے تیرا ہی انتظار ہے۔ وہ چاروں یہ آواز سن کر حیران رہ گئے۔ میری بات غور سے سنو، میرے پاس وقت بہت کم ہے، بوڑھے نے کہا تو وہ چاروں بوڑھے کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ سب کو قبر کی تلاش تھی، آج سے آپ کی تلاش ختم ہوئی۔ مجھے بھی اسی قبر کی ضرورت اور تلاش تھی۔ معاف کرنا دوستو، میں نے ہی تمہارے دوستوں کی جان لی ہے۔ یہ قبر ہی میرا گھر ہے اور روزانہ مجھے بلاتی ہے، کیونکہ میں 100 سال پہلے مر چکا ہوں، لیکن میں 100 سال سے اس جنگل میں بھٹک رہا تھا۔ جب تک میں 4 آدمیوں کو نہ مار لیتا تب تک میں جنگل میں بھٹکتا رہتا۔ میں نے آپ کے چاروں دوستوں کو مار کر اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ مجھے معاف کرنا، میں نے اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے تمہارے دوستوں کی جان لی۔ بوڑھے نے انہیں بتایا۔ اچانک ہی قبر پھٹی اور بوڑھے نے قبر میں چھلانگ لگا دی اور قبر دوبارہ سے بند ہو گئی۔ وہ سکتے کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے تھے۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ کچھ بول سکے۔ ان کے چہروں پر خوف چھایا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں ہیں۔ ان کو حقیقت کا تو معلوم ہو گیا تھا کہ ایک مرا ہوا انسان ان کے ساتھ رہ رہا تھا اور وہ مرا ہوا انسان ہی ان کی موت بنا ہوا تھا۔ آج ان کی تلاش ختم ہو گئی تھی۔ وہ جس قبر کو تلاش کرنے آئے تھے اس تک پہنچ گئے تھے، لیکن اپنے پیاروں کو کھو کر۔ وہ چاروں کچھ دیر تک قبر کو دیکھتے رہے، پھر اپنے دوستوں کی یادیں دل میں لیے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستوں، امید ہے آج کی خوفناک کہانی آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو کہانی ورلڈ کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں، تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں۔ تو پھر ملیں گے ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔